سامعین حضرات، میرے سنی بریلوی حنفی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اس مناظرہ میں بات کرنے کے لیے اصول اور شرائط طے کی گئی تھی، لیکن یہ اصول اور شرائط کا خون کیسے کیا ہے اور مناظرہ میں کیسے ہار تسلیم کیا ہے، آپ حضرات خود ہی ملاحظہ فرما لیں۔ اور اس نے جو ناکام دفاع کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جھوٹے دعوے اور دلیل پر میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا، لیکن اس نے جو حوالے بھیجے تھے ڈر کے مارے، بات کرنے کے بعد ہی فوراً ڈیلیٹ کر دیا۔ میں حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ خود ہی سماعت۔ سامعین محترم، آج 10 اگست کو بدھ کے دن میری بات ہوئی ہے اصغری بیگم سے، تقریباً ابھی 5-6 منٹ پہلے سے بات ہو کر کے پوری کیا ہوئی، وہ جواب نہ دے پایا تو میں نے کال کاٹ دی۔ آپ حضرات اسکرین ویڈیو میں دیکھیے، ابھی ٹائم رہا ہے۔ اس نے مجھے حوالے بھیجے تھے، تو ان کے تمام حوالوں کو بالائے طاق رکھ کر کے میں نے ایک حوالے میں پکڑ کی، تو انہوں نے فراڈ کیا۔ ان کو میں نے کہا کہ تمہارے جھوٹے حوالوں کا میں آپریشن تو کر رہا ہوں، ایک ایک کر کے الحمدللہ کروں گا، لیکن ابھی فی الحال ایک ہی حوالے کو پکڑوں گا اور تمہارے ہی حوالے پیش کروں گا۔ دیکھیں آپ کہ اس نے خوف کے مارے، دہشت کے مارے، کیونکہ اس کو بھی یقین ہے کہ ان کے حوالے نہیں ہوتے، ہوا ہوتے ہیں، اس میں بات کچھ اور ہوتی ہے، یہ بنا کے کچھ اور ثابت کرنا چاہتا ہے، اس بات کو یہ تسلیم کر رہا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھیں، انہوں نے وہ سارے حوالے جو ہیں یہ کر دیے ہیں، ڈیلیٹ کر دیے ہیں۔ آپ دیکھیں سارے حوالے انہوں نے جو بھیجے تھے سب ڈیلیٹ کر دیا ہے، اور رونا رو رہا ہے کہ میں نے اصول کا خون کس بنا پر کہا، انہوں نے دلیل نہیں دیا۔ ارے وہ لوگ سن کر کے فیصلہ کر لیں گے کہ تم نے اصول کا خون کیسے کیا ہے، وہ خود لوگ دیکھیے سامعین حضرات۔ اور یہ کفر لزومی ہے یا کفر التزامی، الحمدللہ ہم جب وائز بنائیں گے تو مختصر سے انداز میں ان سب چیزوں کی وضاحت کر دی جائے گی۔ اب میں ان کے حوالوں کو لگانے والا تھا، لیکن یہ ڈر کے مارے ڈیلیٹ کر دیے کہ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں تو ان کی جھوٹ لوگوں تک نہ پہنچے۔ لیکن اس بات کی گواہی انہوں نے خود دے دی کہ یہ جو حوالے پیش کرتے ہیں بطور دلیل، اس میں مکاری ہوتی ہے، عیاری ہوتی ہے، یہ ڈنڈی مارتے ہیں، دھوکہ بازی کرتے ہیں اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ سامعین محترم، میں نے بطور دلیل اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اسکرین ویڈیو بنایا ڈیٹ تاریخ کے ساتھ میں، تاکہ آپ حضرات جان جائیں کہ دیوبندیت جو ہے کتنے سڑے ہوئے اور بدبودار مذہب کا نام ہے، اور ان کے ماننے والے، ان کے مولوی کتنے جاہل اور کتنے ڈرپوک ہوتے ہیں اور کتنے جھوٹے مکار عیار ہوتے ہیں، جن کو یہ سب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت سنی بریلوی حنفی کو ایسا کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم دین حق میں شامل ہیں اور مضبوطی کے ساتھ دین حق کو تھامے ہوئے ہیں اور اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو آپ سامعین خود ہی فیصلہ کریں کہ یہ علی اصغر کتنا بڑا فراڈی ہے، مکار ہے، عیار ہے، کہ جو ڈر کے مارے حوالوں کو جو ہے ڈیلیٹ کرتا ہے۔ آپ حضرات خود ہی فیصلہ کر لیں۔ دونوں مناظر جو ہے، فریقین جو ہے، وہ اپنے دھرم اور مذہب کے اصول کے مطابق بات کرے گا، ٹھیک ہے، جو اکابر کے اصول ہوں۔ اور دوسری بات، کوئی اگر نام بگاڑا تو اس کی شکست ہو جائے گی اور سامنے والے کو فون کاٹنے کا اختیار ہوگا شکست کا اعلان کر کے، ٹھیک ہے۔ اور جو عبارت پڑھے گا فوراً بھیجے گا، وہ مطالبہ کرنے کی ایک مرتبہ مطالبہ کریں گے، بار بار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، فوراً بھیجے گا وہ کہ اس کے نیا جو عبارت ہے وہ عبارت پڑھنا پڑے گا دونوں کو، ٹھیک ہے۔ جو بھیجے گا وہی پڑھے گا، میں بھیجوں گا میں پڑھوں گا۔ اگر میں مطالبہ کروں تم کو پڑھنے کے لیے، تم بھی پڑھو گے، ٹھیک ہے۔ چاہے عربی عبارت ہو یا فارسی یا اردو ہو، دونوں پڑھنے کی ذمہ داری دونوں کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جو بھیجے گا پہلے پڑھ کر سنائے گا۔ تو اب پہلے دعویٰ پیش کرو، حکم لگاؤ، ٹھیک ہے۔ اور 2 منٹ کی بات ہوگی، درمیان میں کوئی نہیں بولے گا، 2 مناظر بولے گا صرف۔ درمیان میں کسی کی جو بولے گا اس مد مقابل کی بالکل آواز نہیں آنی چاہیے، اگر آواز آئی، ہنسی آئی، کچھ بھی آئی، اس کی شکست ہو جائے گی۔ چلو منور بھائی، ہاں بولیے۔ چلیے، میری طرف سے یہ شرطیں ہیں کہ ان کے تمام شرائط قبول کیے جائیں گے، یہ جتنے بھی رکھیں گے، سوائے ان شرطوں کے جو ان کے اکابرین کے اور مسلک کے مطابق نہ ہو، ٹھیک ہے، اور جو مطابق ہوں گے اس کو قبول ہم کریں گے، ان کے تمام شرائط جو بھی ہیں۔ اب میری شرط یہ ہے کہ 2 منٹ کر کے بات کریں گے، بیچ میں کسی کو بولنا نہیں، یہاں حکم یا مناظر ہی پوچھ سکتا ہے کہ ٹائم ہوا یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور جو ہے دعوے پر دلیل مانگ سکتے ہیں۔
ये 2 चीज़ों की इजाज़त है। उसके तो बाद वापस करो। अभी भाग मत, अभी मैंने पूरी बात बताई नहीं है। उसके बाद जो है मेरी तरफ से ये शर्त है कि अकायद पर जब हम बात करेंगे तो अकायद में जो हमारे उसूल हैं, हमारे अकाबरीन के उसूल हैं, ठीक है, उसके मुताबिक बात करेंगे, ठीक है, कि हमारे लिए हुज्जत जो चीज़ पहले है उसको पहले नंबर पे लाया जाएगा, जो दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे लाया जाएगा, जो तीसरे नंबर पे है उसको तीसरे नंबर पे लाया जाएगा, जो तरतीब है, ठीक है, हमारे बुजुर्गों के जो है उसूल के मुताबिक, ठीक है। जो इसके खिलाफ जाएगा उसकी शिकस्त, ठीक है। मंजूर है अली असगर साहब? हो गया, हो गया। नहीं मंजूर है आपको मेरी ये शर्तें? शराइत हो गई ना, शराइत तो हो अरे गई। मंजूर है आपको, मैं पूछ रहा अब हूँ। मैं बोलूँ ना। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, शराइत जो है हमारी किताब हमारे नजदीक मुसल्लम है, मोतबर है। तुम्हारी किताब तुम्हारे नजदीक मोतबर है। अपना उसे देख सकते, हम पर पबनी को शक करना। ठीक है, आवाज नहीं आई, दोहराइए, ठीक है। कट गई आवाज मेरी तरफ। चलो चलो, दावा पेश करो। अभी आपने कहा क्या, मुझे समझ में नहीं आया, आवाज कट रही थी आपकी, दोबारा बोलिए। हमारी किताब हमारे नजदीक मोतबर, तुम्हारी किताब तुम्हारे नजदीक मोतबर। ठीक है, तुम कहोगे तुम्हारा वसूल पेश कर हम पर थोपोगे, वो हमारे नजदीक मोतबर नहीं है। ठीक है। हाँ, तुम जो अपने वसूल के खिलाफ जाओगे तो मैं तुम्हारे घर से उसको साबित करके तुम्हारी शिकस्त का मैं ऐलान कर सकता, कुछ भी ऐलान कर सकता हूँ। देखिए ठीक पहली है। बात, आप हाँ मेरी चलो। शर्तों को समझ लिया अच्छी तरह से। मैंने कहा है कि हाँ तुम्हारी तमाम समझ गया, शर्तें, समझ के तुम्हारी सुनो, बोला मैं। फिर एक बार सुन लो, तुम्हारी तमाम शर्तें मुझे कबूल है, सिवाय उन शर्तों के जो तुम्हारे अकाबिरीन और मसलक के खिलाफ हो, ठीक है। तो जो उसूल और जो शर्तें हम पर आप ला देंगे वो माशाअल्लाह आपके माशाअल्लाह। अकाबिरीन और मसलक के खिलाफ नहीं होना चाहिए, हमारे तरफ। मुताबिक होना चाहिए, और हाँ ठीक मुताबिकत है, में चलो आपको ठीक है, दिखाना पड़ेगा, चलो ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ ठीक है। चलो और चलिए चलो। चलो, आप इस बात से इत्तेफाक कर चुके ना कि जो हमारे और आपके अकाबिरीन के उसूल हैं, दलाइल के तौर पर हम्म हुज्जत, जिन पर हमारा जो चीज़ हमारे लिए हुज्जत है, तो पहले नंबर हम्म पर जो है पहले अकायद में उनको पेश करेंगे, दूसरे नंबर पर जो है तो दूसरे नंबर पे उनको, तीसरे नंबर पे जो है तीसरे नंबर पे उस चीज़ को पेश किया जाएगा। इसको आप तो मान गए ना? चलो, बोलो बोलो बोलो। मान चलो गए अब कि दावा नहीं? पेश नहीं करो, नहीं दावा पहले पेश नहीं। करो। हाँ मान हाँ गए, दावा चलिए पेश चलिए, करो। ठीक है, चलिए, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हाँ, तो मेरा दावा ये है कि सिरात मुस्तकीम में जो इस्माइल दहलवी ने ये इबारत लिखा है कि माज़अल्लाह, नमाज में जिना के वसवसे से बीवी की मुजामत का ख्याल बेहतर है, और शेख या इन्हीं जैसे बुज़ुर्गों का ख्याल लाना गधे बैल, अपने गधे और बैल की सूरत में मुस्तग़रक़ हो जाने से ज़्यादा बुरा है, ठीक है। तो ये जो है इस्माइल दहलवी जो है मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा करके, बुहतान लगा करके, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करके पक्का कुफ्र किया है। ये हमारा दावा है। इस पर अब आपका मौक़िफ़ क्या है? आप अपना मौक़िफ़ बताएं। तो हो गया मुफ्ती, अब मैं हाँ तुमको मेरी दलील। बात हो गई, आप इस पर अपना मौक़िफ़ पेश करें। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इन्होंने सिरात मुस्तकीम पर इबारत के मुताबिक कहा ये कुफ्र है। ठीक है? इबारत जो है, चलो मैं उनकी इनके यहाँ लगता नहीं है कि कुफ्र का फतवा किस पर लगता है, जरा वाज़े कर देना तुम कारी में कि इल्तिजामी कुफ्र है, कुफ्र लुज़ूमी है, कुफ्र इल्तिजामी है, ये दोनों के वाज़े का वजाहत कर देना। फिर मैंने उसका हवाला भेज दिया है, फिर पढ़ रहा हूँ मैं। तो जो ये मुनाज़रा ढंग है, अशरफ सियालवी किताब, अगर ये कहेगा मोतबर नहीं है उसके नजदीक मसलक में, मैं हवाला दूंगा इंशाअल्लाह। सफ़ा नंबर 261 में लिखता है कि यहाँ फ़कत इस इबारत में बहस है जो सिरात मुस्तकीम में है, और ये मनोवर रजा नक्शबंदी साहब ने सिरात मुस्तकीम का नाम लिया, उसकी इबारत पढ़ी उसने, और उसमें तावील की गुंजाइश है। क्या तावील की गुंजाइश है? सामने अब बताएं, जिस इबारत में तावील की गुंजाइश हो, क्या उस पर हुक्म में कुफ्र लगता है? इन्होंने कुफ्र कहा है, और नबी सल्लम की हदीस है कि जो किसी को काफिर के, अगर काफिर नहीं है तो कुफ्र उस पर लौटता है। तो मैंने उससे साबित किया, उन्होंने कहा सिरात मुस्तकीम में ये इबारत है और इस पर काफिर हुआ। ठीक है, मैंने उसे घर साबित किया, ये मुनाज़रा की इबारत है, उसमें कहता है कि तावील की गुंजाइश है। ठीक है, जब तावील गुंजाइश है तो कुफ्र का फतवा हुसामुल हरमैन है। हुसामुल हरमैन में उसके साहब ये लिखते हैं
हो गया तौहीद ईमान है। अली असगर, पूरा 2 मिनट हो गया, पूरा 2 मिनट हो हो गया, गए 2 मिनट। पूरा 2 मिनट हो गया, ज्यादा हो रहा है। ज़्यादा हो रहा है। मनोहर भाई बोलिए। हाँ रुकिए 1 मिनट। अरे यार मोबाइल अभी ऐसा कर रहा है ना, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामिईन मुहतरम, आप हज़रात गौर फरमाएँ कि मैंने इनसे कहा था कि हमारे और तुम्हारे अकाबिरीन के उसूल के मुताबिक जो चीज़ हुज्जत में पहले नंबर पर है, अक़ायद पर हम बात करेंगे तो पहले उन चीज़ों को पेश किया जाएगा, यानी कुरान मजीद। फिर जो दूसरे नंबर पर है यानी हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उसको पेश किया जाएगा। तीसरे नंबर पर इजमाए उम्मत, या कुरान को भी पसे पुश्त रखा, हदीस को भी पसे पुश्त रखा और इजमाए उम्मत को भी पसे पुश्त रखा, और अकाबिरीन की इबारतें जो चौथे नंबर पर है उसको लेकर के आया। तो इसने तो शुरू में ही शराइत का खून कर डाला, अब इससे बात क्या करेंगे? तो इनको एक मौका और हम फिर दे रहे हैं कि पहले सिरात मुस्तकीम जो अक़ायद के ताल्लुक़ से बात हो रही है, तो हुज्जत के तौर पर जो हमारे लिए अव्वल नंबर पर है कुरान मजीद, ये उससे सिरात मुस्तकीम की दिफा करे, और या उससे अगर उसको दिफा का कोई तरीक़ा नहीं मिल रहा, नहीं सूझ रहा है, तो वो जो है हदीस रसूल से जो है दिफा करे। अगर उसमें भी नहीं मिल रहा तो इजमा उम्मत से जो है सिरात मुस्तकीम की इबारत का दिफा करे। और इंशाअल्लाह ताला इसने जो अभी मुनाजरा जंग का जो इबारत भेजा है, इंशाअल्लाह इसमें तो हम इसकी ऐसे धज्जी बिखेर देंगे कि ये न जी पाएगा न मर पाएगा। लेकिन पहले जो इसने शर्त की खून, शराइतों की खून की, और अपने अकाबिरीन और अपने मसलक के जो है खून में मुलविस हुआ है, तो इससे रुजू करने का इनको हम एक और मौका देते हैं कि ये जो हो गया, किया है और जो शराइत तय की है। टाइम हो गया। मनोहर भाई हो गया। हाँ चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख से कहा कि सबसे पहले कुरान और हदीस, कुरान पे जनसा, फिर हदीस, फिर इजमा कियास। ये नहीं कहा था कि जब नहीं भेजेगा, अगर के खिलाफ हुआ तो किस तरह से नहीं कहा था। चार की शर्त रखी ये हमारी, ठीक है? क्यों? इसलिए कि इसने तो इबारत पढ़ी, कुरान की आयत नहीं पढ़ी इसने। ये खुद दावा कर रहा है सबसे पहले कुरान सबसे दलील देना चाहिए। इसने सिरात मुस्तकीम पढ़ा। क्या सिरात मुस्तकीम तुम्हारे नजदीक कुरान है? नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तुमने तो खुद हमारे अकाबिर की किताब पेश की, हमारे मसले की किताब पेश की। जब मैं उसके मुकाबले में तुम्हारे मसले की किताब पेश किया, फिर तुमको कुरान और हदीस की दलील का मुतालबा करने का क्या हक होता है? मैंने कहा तुम तो कहते हो, तुम खुद पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। सामिन, सबसे पहले मैंने सवाल इसे किया था, तुम्हें जो हुक्म कुफ्र लगाया है, कुफ्र लुज़ूमी या इल्तिज़ामी है? जवाब नहीं दिया। मेरा तो दावा है कि क़यामत तक ये कह नहीं सकता कि कुफ्र इल्तिज़ामी है, कुफ्र लुज़ूमी है, कहीं नहीं, क्योंकि इसको खुद पता नहीं है कुफ्र इल्तिज़ामी किसे कहते हैं और लुज़ूमी किसे कहते हैं। और मैंने उसके दावे की तरदीद की और उसका फतवा कुफ्र उसे गले का टोक बना दिया। मुनाज़रा ढंग से हवाला जगह साबित किया है, सिरात मुस्तकीम की इबारत इसने इतराज़ किया है, और वो अशरफ सियादी साहब कह रहे हैं कि सिरात मुस्तकीम में तावील की गुंजाइश है। हमें तावील की गुंजाइश हो, फतवा कुफ्र किस चीज की हवाला दे रहा हूँ, अमीन हवाले की बात कर रहा हूँ। बारिश का मौसम है, हवाले की बात कर रहा हूँ। ये देखिए सामने मेरे पास में ये अशरफ सियादी की किताब है, तहक़ीक़ात, उसमें लिख रहा है कि हज़रत को इस्लाम का पहलू समझ में आया। इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत पर उसके आला हजरत इस्लाम का नजर आया। मुनव्वर रज़ा साहब मुझे आप जवाब देंगे, इस इबारत पर इस्लाम का पहलू हो, क्या उस इबारत पर कुफ्र होता है? कुफ्र का पहलू भी होता है? मेरा तो अकीदा जहाँ इस्लाम वहाँ कुफ्र नहीं है, जहाँ कुफ्र वहाँ इस्लाम नहीं है। तुम्हारा अकीदा ये है कि इस्लाम जहाँ वहाँ कुफ्र है। तुम्हारी किताब हो गया, है कि इस्लाम का पहलू हो गया, अभी 10 सेकंड बाकी है, घड़ी देख रहा हूँ, हो गया, बाकी है भाई। अच्छा हो गया, मैं घड़ी देख रहा हूँ। कौन खयानत कर रहा है? चलो आप टाइम मिला लो, मैं देख रहा हूँ 18 पर हुआ था और ये चल रहा है 36, 18 सेकंड जाते गया। एक मिनट अभी हो गया 40 हो गया। चलो देख रहा हूँ मैं। क्या टाइम इनका टाइम हो गया क्या? हाँ हो गया, ज्यादा हो गया। चलिए सामिईन मुहतरम, जरा ध्यान देना आप टाइम पर। ज़रा बताएं कि कुफ्र लुज़ूमी और इल्तिज़ामी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम ने तहक़ीक़ के साथ, जो तहक़ीक़ के मैदान के शाहसवार हैं, इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वज़ाहत की है। और इस्माइल दहलवी जो बचा हुआ है, वो जो मसला में शुबा के
اقسام ہے، شبہ فی الکلام، شبہ فی المتکلم، شبہ فی التکلم. یہ تو اصغر علی کو جو ہے بالکل معلوم نہیں ہے کہ یہ سب ہوتے کیا ہیں. یہ ابھی التزامی اور لزومی مجھے سمجھانے چلا ہے. انشاءاللہ اس میں تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن میں نے جو شرط رکھی کہ پہلے ہم قرآن کے مطابق بات کریں گے، احادیث کے مطابق بات کریں گے، اجماع امت کے مطابق بات کریں گے. یہ کہتا ہے کہ تم نے تو ارے ہمارا اعتراض ہی تمہاری کتاب پر ہے اور ہمارا دعویٰ ہی ہے کہ یہاں کفر ہے، تو تم اس کفر کو ایمان ثابت کرو گے تو کہاں سے کرو گے؟ ہمارا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا یہ اعتراض ہے کہ یہ جو ہے کفر ہے. تو اب تم جو ہے دفاع کرو گے اپنے مولوی صاحب کی، تو تمہیں دفاع کے لیے جو ہے ایمان ثابت کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں تو قرآن پیش کرنا پڑے گا، حدیث پیش کرنا پڑے گا، اجماع امت کو جو ہے پیش کرنا پڑے گا. اب تم جو ہے قرآن پیش نہیں کرتے، حدیث پیش نہیں کرتے، اجماع امت پیش نہیں کرتے، الٹا ہمیں جو ہے اب بچنے کے لیے ہمارے اوپر آ رہے ہو کہ انہوں نے جو ہے صراط مستقیم. ارے تو ہم تو بات ہی کر رہے ہیں نا صراط مستقیم کی عبارت پر، صراط مستقیم کی عبارت پر ہماری بات ہی ہو رہی ہے، اعتراض ہی اسی عبارت پر ہے. تو ہم کہاں سے جائیں، کہاں پہ تم کو پکڑیں؟ تو اسی عبارت کو میں نے کوٹ کر کے میں نے کہا ہے کہ یہ کفر ہے. اب تمہارے نزدیک یہ کفر نہیں ہے، ایمان ہے. تو ایمان تم ثابت کرو گے تو کہاں سے؟ مناظرہ جھنگ سے ایمان ثابت کرو گے. تو باقی ساری باتیں تمہارے انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بات ہو جائے گی، وہ لزومی ہو، التزامی ہو، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو کیا پہلو نظر آیا سب ہم بتا دیں گے. ہو گیا منٹ بھائی، ہو گیا. ہاں بسم اللہ بولو. الرحمن الرحیم. سامعین یہ بول رہا ہے قرآن ثابت کرو. جب میں ان کے گھر سے ثابت کر رہا ہوں تو ان کے گھر کی کتاب معتبر کیوں نہیں ہے؟ کیوں معتبر نہیں؟ کیا ان کے گھر کی کتاب قرآن حدیث کے خلاف ہے یا پھر دھوکہ دیا گیا ہے ان کی کتاب میں؟ ٹھیک ہے، دو حوالہ میں نے دیا ہے. ٹھیک ہے، کہ جو صراط مستقیم کی عبارت جو ہے ایمانی عبارت ہے، کفر نہیں ہے، وہ میں نے ثابت کیا دو کتاب سے. ٹھیک ہے، ایک میں تعویل گنجائش نہیں ہے اور ایک میں لکھ رہا ہے اسلام کا پہلو ہے. جواب نہیں دیا اس نے کہ جہاں ان کی کتاب پڑھ رہی ہے کہ اسلام کا پہلو سمجھ میں آیا اس کے مجدد کو، تو میں پوچھ رہا ہوں میرا عقیدہ ہے جہاں اسلام وہاں کفر نہیں، جہاں کفر وہاں اسلام نہیں. کیا تمہارا عقیدہ وہی ہے؟ عرصی الگ ہے کہ جہاں اسلام وہاں کفر بھی ہے. تمہارا مجدد کہہ رہا ہے کہ اسلام کا پہلو ہے، تو تمہارا نظر یہی عقیدہ ہے کہ جہاں اسلام وہاں کفر بھی ہے. تو نے جواب نہیں دیا. اور تم نے یہ بات نہیں کہی کہ الزامی کفر ہے کہ کفر لزومی ہے، یہ بھی جواب نہیں دیا. اور ایک کتاب المعتقد المنتقد، ٹھیک ہے، یہ تمہارے گھر کی کتاب تمہارے مجدد کی ہی ہے. اس میں لکھ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک نے دعا کی، اللہ نے قبول کی. ایک دعا محفوظ رکھی، قیامت میں اللہ قبول کرے گا. اس میں یہ ہے کہ اہل لا الہ الا اللہ کی شفاعت کریں گے نبی علیہ السلام. اہل لا الہ الا اللہ کی، اہل لا الہ الا اللہ کی شفاعت کریں گے. تعمیر ایمان میں ہے کہ اسماعیل دہلوی اہل لا الہ الا اللہ میں سے ہے. ہمارے نبی نے تکبیر سے منع کیا ہے. جال حق میں لکھا ہے مسلمانوں کے منہ سے وہی بات نکلتی ہے جو اللہ کے یہاں ہوتی ہے. پتہ چلا اسماعیل دہلوی مسلمان ہیں، ان کے مجدد کی کتاب ثابت ہے، اللہ کے نسل میں شفاعت کے مستحق ہیں. اور جال حق والا مصنف کہہ رہا ہے، ان کے حکیم علمت کہہ رہے ہیں کہ احمد یار خان نعیمی صاحب کہ اسماعیل دہلوی کی زبان سے وہی بات نکلی جو اللہ کے یہاں ہوتی ہے. 3 کتاب سے میں نے ثابت کیا، 5 کتاب کا حوالہ میں نے دیا ہے، اور اسلام ثابت کیوں گے گھر کی کتاب سے. ٹھیک ہے سامعین، میں نے ثابت کیا ہے کہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مسلمان ہے. 2 منٹ ہو گیا، 2 منٹ ہو گیا. سامعین محترم، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اصغر علی کے پاس کچھ تو ہے نہیں سوائے فراڈ اور مکاری کے. یہ فراڈ کریں گے، مکاری کریں گے، یہ کتاب بھیجتے رہیں گے. حالانکہ ان کتابوں کا میں نے رد کرنا شروع کیا الحمدللہ، 2 آڈیو میں نے اپلوڈ کیا. انشاءاللہ یہ کرتے رہیں گے، کیونکہ ابھی اتنا پڑھنے کا ٹائم تو ملتا نہیں کہ ہم ان کی بات سنیں یہ حوالہ پڑھیں. اس لیے یہ ابھی حوالے بھیجتے رہیں گے، بھلے ان کے دعوے کے خلاف ہی اس میں بات موجود کیوں نہ ہو. لیکن اس نے جو پہلا حوالہ بھیجا ہے مجھے کہ صراط مستقیم کی عبارت میں تعویل موجود ہے، تو کیا یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ تعویل کی گنجائش ہے تو کس عبارت میں؟ یہ کہ گدھے اور بیل کی صورت میں جو ہے مستغرق ہو جانے سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا برا ہے، اس میں جو ہے تعویل کی گنجائش موجود ہے. اگر اس عبارت میں تعویل کی گنجائش موجود ہے تو جو حوالہ آپ نے بھیجا اس میں مجھے دکھائیے گا. اور پہلی بات سامعین محترم، میں نے کہا تھا کہ اصول اکابرین کے اور جو ہے مسلک کے لے کر کے جو حجت کے طور پر ہم پہلے پیش کریں گے، جو پہلے نمبر پر ہوگا، اس نے مانا ہے تو پہلے نمبر پر ان کے یہاں حجت کے طور پر کیا ہے؟ قرآن ہے یا نہیں ہے. دوسرے نمبر پر حدیث ہے یا نہیں ہے. تیسرے نمبر پر جو ہے اجماع امت ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو انہوں نے شرائط کا خون کیوں کیا؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ ثابت کریں گے. اب اس نے کہا کہ کیا ان کی اکابرین کی کتاب حجت نہیں ہے؟
अस्तगफिरुल्लाह। तो सामईन मुहतरम ये बताएं कि अक़ायद में जो ये दलील पेश करेंगे तो ये अक़ायद में अपने मौलवियों की तक़लीद करेंगे, अकाबिरीन की तक़लीद करेंगे। अक़ायद में अकाबिरीन की या बुजुर्गान दीन की तक़लीद की जाती है। अगर इनके यहाँ तक़लीद की जाती है तो ये भी बताएंगे कि हाँ अक़ायद में भी हमारे यहाँ तक़लीद होती है और इसकी ये दलील देंगे। वरना ये खुद ही फैसला करे कि ये बोलते क्या हैं। ये बोलते वो है जो खुद नहीं समझते। हो गया तो मेरे इन टाइम, हो सवालों गया, को जवाब दे। हो गया हाँ टाइम, हो जवाब गया दे। हो हाँ गया जवाब। मनोहर भाई, मुनाज़र जंग की पूरी इबारत पढ़ी उसमें बताते। हाँ हो गया 2 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इतने दलाइल मैंने दिया है, बेचारे परेशान और कह रहे हैं कि इतना दलाइल पढ़ने का वक्त नहीं है। हालांकि मुनाजरा दलाइल से ही होता है, उनको पता नहीं है। और मैंने सामीन इनकी कई किताब पेश किया मैं, और एक हवाला दे रहा हूँ, फतवा मजहरिया। मैंने कहा ना बारिश का मौसम है और अली असगर है, दलाइल की बारिश करेगा, वो बारिश कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। एक प्रोफेसर मसूद साहब लिख रहे हैं कि और ये ख्याल करता था कि अगर मौलाना को उनकी जिंदगी में उस तरह मुतवज्जो किया जाता तो शायद रुजू कर लेते। इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह या दिगर हमारे अकाबिर का नाम लिया है ऊपर सवाल में, और लिखा है कि अगर इनको उनकी जिंदगी में रुजू किया जाता, उनको बताया जाता, उनको आगाह किया जाता आपकी इबारत ये है, तो शायद रुजू कर लेते। पता ही चला इनके यहाँ हमारे अकाबिर के मुताबिक जो कुफ्र का फतवा दिया गया है बगैर इत्तला किए, से छुरा फूंपा गया है, इनको इत्तला दी नहीं गई। वसूल ये है जिसके मुताबिक तुम्हें कुफ्र का इबारत जाहिर हो तो उसको आगाह किया जाए, इत्तला किया जाए कि भाई आपकी इबारत क्या कहते हैं। तो बगैर इत्तला किए, बगैर रुजू किए, बगैर आगाह किए, इसके मुजद्दिद साहब ने ये जुर्अत की है, हिम्मत की है कि किसी मुसलमान को, किसी वली को, किसी अहलुल्लाह को काफिर साबित करने की। ठीक है, तो ये साबित किया फतवा नजरिए से। कई किताबों से मैंने साबित किया इस्माइल ला इलाहा इल्लल्लाह है और नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत का हकदार हैं, उनकी किताब से मैंने साबित किया। और जाल साबित किया उनकी इस्माइल ज़हरी ज़बान से जो बात निकली अल्लाह क्या मौजूद थी, और बात तय अल्लाह के तरफ से बात निकली है। तो जिस मुसलमान की ज़बान से अल्लाह के तरफ जो बात निकले, अल्लाह कुफ्र निकालेगा, गुस्ताखी निकालेगा। आप साबित करो मुनव्वर साहब, मुनाजरा आसान नहीं है, दलाल का मैदान है। हो गया, समय हो गया। सामईन मोहतरम, आप इनका रोना समाप्त कर सकते हैं, बेचारा तड़प रहा है। ये हमें मुनाजरा बताएगा। मैंने 4 सवाल किए, लेकिन ये जो है अब क्या कहे इनको, जहर का प्याला पीना गवारा तो किया, मेरे 4 सवालों में से एक सवाल का जवाब नहीं दिया। चलिए, ये दे भी नहीं सकता है, ठीक है। मैंने सवाल क्या किया, सवाल ये किया था कि तुम्हारे यहाँ हुज्जत के तौर पर जो पेश करते हो, पहले नंबर पर क्या है, कुरान है या नहीं, दूसरे नंबर पर हदीस पाक है या नहीं, तीसरे नंबर पर इजमा उम्मत है या नहीं, खा गया। फिर मैंने कहा कि अक़ायद में तक़लीद होती है, तुम अपने बुजुर्गों की तक़लीद करते हो अक़ायद में, इसका भी जवाब खा गया। मैंने इसे फिर ये भी पूछा था कि तुमने जो पहला हवाला, अब देखिए सामईन इनके हवालों का जो है, इनके हवालों की जो है अहमियत क्या है, और इनके हवाले होते हैं या हवा होती हैं, आप समाअत खुद कर सकते हैं और खुद समझ सकते हैं। मैंने इनसे पूछा कि जो तुमने हवाला दिया है और ये दावा करने की कोशिश की है कि सिरात मुस्तकीम में ये जो गधे और बैल के ख्याल में डूब जाने से ज़्यादा बुरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल लाना है, तो इस इबारत की यहाँ पे बात हो रही है कि इसमें तावील की गुंजाइश मौजूद है। तो इसने ये दावा करके कैसे फराड किया है? तो मैं इसे कहूँगा कि इसी में ये दिखा दो कि मुनाजरा जंग की ये इबारत, कि सिरात मुस्तकीम की ये इबारत कि गधे और बैल की सूरत में मुस्तगरक हो जाने से ज़्यादा बुरा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल लाना, इसमें तावील मौजूद है, इस किताब से दिखाओ। चलो इसी पर, चलो इसने तो मुनाज़िर वसूल का और अपने अकाबिरीन का खून करके शिकस्त तस्लीम कर चुका है। आखिरी मौका इनको देते हैं, पहला हवाला जिसमें इसने डंडी मारी है, इसी को साबित कर दे कि सिरात मुस्तकीम की इसी इबारत की बात हो रही है, गधे और बैल वाली बात हो रही है, कि इसमें तावील की गुंजाइश मौजूद है, तो ये साबित करे। हाँ साबित करो अली असगर साहब। बाकी है 2 मिनट, अभी 20 सेकंड बाकी रहने दिया, मैं इनको दिया हाँ, बात नहीं दिया। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन उसने बात कही कि जो मैं साबित के तहकीकात से, तो अशरफ सालवी साहब की किताब, उन्होंने बात लिखी है कि इस्माइल ज़हरी की इबारत में ये इस्लाम का पहलू है। इसमें मैं तो कहता हूँ मुतलक तमाम इबारतों की बात कही है, तुम साबित करोगे कि वहाँ पे जो है, मैं तो कहता हूँ उनकी बात कही है, उनकी इबारत से बात कही गई है। मैं इससे तमाम किताबों का आगे दूंगा कि हाँ, उन तमाम किताबों के बारे में मुतालिक कही गई है। साबित तुम करोगे, तुम्हारी किताब है, कि उन्होंने उस किताब के मुतालिक नहीं कहा है। ठीक है। दूसरी बात, अभी तक तुमने कुफ्र इल्जाम कुफ्र के मुतालिक कुछ नहीं कहा, अभी तो आप तुम्हें दिया नहीं। और एक बात, हाँ,
ये कह रहे हैं मुफ्ती साहब कि हदीस कुरान क्यों नहीं पेश किया। देखें, मैंने दो किताब का हवाला पेश कर दिया मैं अभी, पहले भेज रहा हूँ फिर पढ़ रहा हूँ। तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत जमात जिल्द अव्वल, उसमें उनके मौलाना अशरफ मसूद शरीफ साहब लिख रहे हैं कि मगर देवबंदी मौसूफ अब इतने जाहिद बेअक्ल की दलील के तौर पर अपनी ही किताबें पेश करते हैं। यानी वसूल उनका ये है कि अपनी किताब पेश करना ये बेवकूफ़ी है, जहालना हरकत है, जाहिराना हरकत है। तो मद्दे मुकाबिल उनके घर की किताब से पेश करना चाहिए दलील जो है। ये मैं उनके घर से वसूल साबित किया। दूसरी किताब इबारात अकाबिर का तहकीक तनकीद जायज़, हिस्सा अव्वल, साहिद गुलाम नसीरुद्दीन सियालवी साहब कह रहे हैं सफ़ा नंबर 320 में, मुखालिफिन के सामने अपनी किताबों के हवाले पेश नहीं किए जाते। मुनव्वर साहब आपके आलिम कह रहे हैं, आप आखिर इस कदर बौखला क्यों गए हैं। मैं अपना जुमला इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, आप किताब पढ़ रहा हूँ कि मुखालिफिन के सामने अपनी किताबों के हवाले पेश किए जाते हैं, नहीं किए जाते। आप आखिर इस कदर बौखला क्यों गए हैं। आप इजमा क़ियास कुरान हदीस की बात कर रहे हैं। आपका वसूल तो यह है कि मद्दे मुकाबिल को उनकी घर की किताब करना चाहिए। ठीक है। सामईन मोहतरम, अब इनकी आप बुखलाहट समाप्त कर सकते हैं। देखिए, मैं इसलिए इनके सारे हवालों को जो है हवा में रख रहा हूँ क्योंकि इनका पहला हवाला ही झूठा है, फराड पर मबनी है, मक्कारी पर मबनी है। पहला हवाला इसने दिया कि देखो सिरात मुस्तकीम की इबारत में तावील की गुंजाइश है, हालांकि वहाँ लिखा है कि यहाँ फ़क़त का लफ्ज़ मौजूद है। ठीक है, कि यहाँ फ़क़त जिस इबारत पर बात हो रही है सिरात मुस्तकीम की, तो यहाँ एक मखसूस इबारत की बात हो रही है। लेकिन कहते हैं ना कि देवबंदी हजरात जब भी बात करेंगे वो फराड करेंगे, मक्कारी करेंगे, बगैर फराड के, बगैर मक्कारी के वो जो है बगैर आंखों में धूल झोंके हुए एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। सामईन मोहतरम, अब मैं इससे आखिरी बार कहूँगा कि इसने जो पहला हवाला जिसमें मक्कारी की, अय्यारी की है कि सिरात मुस्तकीम की बैल गधे के ख्याल में डूब जाने से ज़्यादा बुरा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल लाना, इस इबारत में गुंजाइश की पहलू मौजूद है, तावील की गुंजाइश है, ये मुझे बताए और दिखाए, वरना इसी की भेजी हुई स्क्रीनशॉट में ऑडियो में लगाऊंगा। आप समझ जाएंगे कि इनका पहला हवाला अगर इतना जो है भद्दा और बिल्कुल झूठा हो सकता है तो इनके सारे हवालों का क्या हाल होता होगा। और अलग से मैं ऑडियो तो बनाता ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जितने हवाले भेजे मेरे लिए अच्छा है ताकि इनके सारे हवालों का मैं जवाब दे सकूँ अलग से। फिर आखिरी मौका मैं इनको देता हूँ। ये तो देखिए सामईन, इनके भी अकाबिर के उसूल यही हैं, इनके लिए भी हुज्जत पहले नंबर पर कुरान और हदीस है। इनके अकाबिर इनके ये नहीं मानता, ये अपने अकाबिरीन को जो है मार दिया, उनका खून कर दिया, ये इनके जो है नसीब में यही है। अब घबरा गया बुखला, ये जानता है कि अगर मैं अपने अकाबिरीन के उसूल के मुताबिक चलूंगा फंस जाऊंगा, जबकि शरायत में तय हो चुकी थी ये बात कि उसूल और अकाबिरीन के मसलक के खिलाफ नहीं जाना है, तो ये जाकर के तो खुद शिकस्त तस्लीम कर चुका है। लेकिन आखिरी बात मैं यही कहूँगा कि इस बार ये जवाब दे कि यो इबारत गधे बैल वाली इबारत है, तो माज़ अल्लाह इसमें जो तौहीन की है इस्माइल दहलवी ने, तो क्या इस इबारत में गुंजाइश की पहलू मौजूद है, तावील की गुंजाइश है? हाँ, वो दिखाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फोन कर देंगे। हाँ चलिए। शामिल किताब इसकी है, उसूल उनके घर का वो ये है कि मुसन्निफ ही अपने कौल का मुराद बेहतर जानता है। अगर कहेंगे मैं हवाला दे दूंगा।